Hello students, so we are studying atomic structure, and in atomic structure we have discussed about Dalton's atomic theory, 6 theories of Dalton's atomic theory. After Dalton atomic theory we have studied about subatomic particles like electron, proton and neutron. Then William Crookes experiment of cathode ray experiment. So today we will learn about a discovery of electron, or you can say J.J. Thomson's experiment. So J.J. Thomson's experiment, which is done by J.J. Thomson in 1897, it is an advanced version of William Crookes' cathode ray experiment. When J.J. Thomson observed the cathode rays, what he do? He performed different experiment on this discharge tube. First experiment, what he did is he applied electric field on it. So if we apply a distal electric field over there, suppose that it's positive terminal and this negative terminal of electric field. So when we apply a distal electric field, what happened? These rays are deviated towards positive terminal. These rays are deviated towards positive terminal. Why they are deviated towards positive terminal? Because they are negatively charged particles. And these negatively charged particles are named as electron by J.J. Thomson. Next experiment, what is the next experiment of J.J. Thomson? He applied a magnetic field across this tube. When you apply a magnetic field, cathode rays are deviated towards negative plate, deviated towards magnetic field. So what he observed that these cathode rays are deviated towards positive plate, so they are negatively charged particles. They are also deviated in magnetic field. So Thomson conclude that, what he conclude? He conclude that cathode rays are made up of negatively charged particles called electrons, and all atom contains electron as their integral part. The properties of electrons are independent of nature of gas filled in discharge tube. Means इस discharge tube के अंदर अगर मैं कोई भी गैस भरता हूँ, लेकिन उस discharge tube में कैथोड रे की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी से. इसमें कोई भी गैस भरेंगे इलेक्ट्रॉन डेविएट होगा पॉजिटिव की तरफ. So electrons are negatively charged particles. इस कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकलता है. कैथोड रे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, राइट? तो ये बताया था J.J. Thomson ने. Now, what are the properties of electron? So now I am going to enlist the properties of electron. So first property is an electron has a definite mass. So electron, proton and neutrons, they all have definite mass. So first property of electron is electron have a particular mass. ये मास वाली बात कहाँ से आ गई? ये मास कैसे पता चला कि ये मास है? तो Christians are used to wear a cross. तो J.J. Thomson भी क्रॉस पहनते थे. उन्होंने क्या करा? इस ट्यूब के अंदर अपने क्रॉस को रख दिया, ऐसे क्रॉस को रख दिया.
क्रॉस को रख दिया तो उन्होंने क्या रखा कि पीछे इसके शैडो बन रहा है, शैडो। तो शैडो तो उसी चीज का बन सकता है जिसके पास मास हो, राइट। शैडो तो उसी का बन सकता है जिसके पास मास हो। अच्छा, इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक छोटा सा व्हील लगा दिया, पेपर का व्हील लगा दिया, कोई भी ऐसे लाइट वेट व्हील। जैसे ही कैथोड रे पास होता तो वो व्हील थोड़ा सा रोटेट हो रहा था। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट तब तक किसी को पुश नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर मास ना हो। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे कि ये पता चला कि इसकी कैथोड रे के पास यानी इलेक्ट्रॉन के पास मास है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन हैव मास। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मैंने चार्ज बताया आपको। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो निगेटिव में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है चार्ज, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एंड व्हाट अबाउट मास ऑफ हाइड्रोजन? तो मास ऑफ हाइड्रोजन की बात किया जाए, सॉरी मास ऑफ कैथोड रे की बात किया जाए इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो उस वक्त क्या है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल था तो कंपेयर करते थे हम हाइड्रोजन से। तो किसी भी चीज़ के मास को हाइड्रोजन से कंपेयर कर लेते थे। तो इसमें क्या बताया गया हाइड्रोजन के मास के बारे में? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। और इसमें क्या कहा गया कि दिस मास इज नेग्लिजिबल। मास जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। इट इज 1/1837। 1/1837 इतना हाइड्रोजन के मास है, इस इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक एटॉम का जो मास होता है उसका 1837 अगर उससे इतने टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तब जाके आता है इलेक्ट्रॉन का मास। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। ठीक है, और ये था इसकी प्रॉपर्टी। और इस इलेक्ट्रॉन को हम इंडिकेट करते हैं कैसे? देखिए ई इलेक्ट्रॉन है, अगर हम बहुत हो तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इंडिकेट होगा, चार्ज, राइट। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपकी बुक में भी एक सिंबल का तरीका दिया है ई नॉट ऐसे, तो आप इलेक्ट्रॉन को इसी तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। दैट इज सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट इज यूनिट नेगेटिव चार्ज, सिंबल ऑफ यूनिट नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने 1897 में करा। उन्होंने विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखे कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कैथोड रे डेविएट हो रही है। इस वजह से उन्होंने बोला कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज है, राइट। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम होता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है। अगर एक हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो एक हाइड्रोजन के मास के लगभग 2000 टाइम्स स्मॉलर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स स्मॉलर होता है ये इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, so that is discovery of electron. So in next class we will discuss about discovery of proton. Thanks for today.